Hello everyone, welcome to my channel Gul Study Point. This is Gulasha Iqbal here. और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि टीजीटी और एलटी ग्रेड की फिर से वैकेंसीज आने वाली हैं, तो आपकी एलटी ग्रेड का जो शेक्सपियर की पोएम जिसमें सोनेट नंबर 29 और एक सोनेट और है जो इसमें आपके सिलेबस में है एलटी ग्रेड के, तो उसी को आज मैं डिस्कस करने जा रही हूँ। सोनेट नंबर 29 ऑफ विलियम शेक्सपियर। Whenever my luck turns bad and people look down on me, I sit by myself and cry because I am all alone, and I pray to God who doesn't listen or answer my prayers, and I look at my life and curse the way it's turned out, wishing that I was like someone with better prospects, that I was more beautiful, that I had more influential friend, wishing that I had this man's skill and that one's range of skill, and even the things I love best don't bring me any pleasure. Yet whenever I think like this, almost hating myself, I think about you, and then I feel like a bird at the break of the day that flies up from the ground and sings songs at the pearly gates, because thinking about your love brings so much richness to my life that I would rather have it than be king. देखिए, जैसा कि आपको पता है कि विलियम शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखी हैं, ठीक है, तो ये सोनेट नंबर 29 है। देखिए, सोनेट नंबर 29 इज इन पार्ट अ पोएम अबाउट आइसोलेशन, एनवी एंड डिस्पेयर। ये एक पोएम है आइसोलेशन, एनवी और डिस्पेयर पर बेस्ड ऑन है। In the first 8 lines, the speaker lists a series of anxieties and injuries, comparing himself negatively to more prosperous, successful and beautiful people. देखिए, इस पोएम की फर्स्ट 8 लाइन में स्पीकर जो एंजाइटीज एंड इंजरीज, अपनी चिंताओं को और अपने इंजरीज को कंपेयर करता है नेगेटिवली टू मोर प्रॉस्पेरस, जो बहुत ज़्यादा अमीर होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं और सुंदर लोग होते हैं, उनसे खुद को कंपेयर करते हैं। द स्पीकर द सजेस्ट दैट, तब स्पीकर सजेस्ट करते हैं कि हिज सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ डिपेंड्स ऑन अदर्स, कि उसका जो सेंस ऑफ सेल्फ वर्थ है वो दूसरों पर डिपेंड्स होता है। हिज सोशल स्टेटस एंड हिज इमोशनल लाइफ आर inextricably braided together. A combination, the poem argues, breeds only further isolation and discontent. The poem begins with the speaker listening a series of misfortunes. जो पोएम है वो शुरू होती है with the speaker listening a series of misfortune, जो एक misfortune की सीरीज को लिसन कर रहे हैं। He has suffered, जो दुखी हैं। He describes himself as disgrace, वो खुद को disgrace जो है describe करते हैं, and an outcast, and implies that he is hopeless, और implies करते हैं कि वो hopeless है, untalented है, and ugly और कुरूप है, that he lacks political influence, और उनमें political influence की कमी है, and that he no longer takes pleasure in the things he once enjoyed, और वो किसी चीज़ को ज़्यादा देर तक आनंद नहीं ले सकते हैं जिसका वो पहले से एंजॉय कर चुके हैं। It might seem then that the poem is responding to some catastrophe, say a bankruptcy or a death in the family, but the speaker opens the poem with the word when, किंतु जो स्पीकर है वो अपनी पोएम को when से शुरू करते हैं। A conditional structure that frames the rest of the list of misfortunes the speaker supplies. He is not responding to the specific event, but वो एक specific event को नहीं respond कर रहे हैं, instead reflecting on something that happens to him often. जो स्पीकर है वो कंप्लेंट्स करते हैं, प्लेसेस द स्पीकर इन रिलेशन टू अदर पीपल से। ही कंपेयर्स हिज ओन ब्यूटी, वेल्थ एंड स्टेटस टू दोज अराउंड हिम, वो अपनी सुंदरता, अमीरी
और स्टेटस का जो कंपेयर करते हैं वो अपने चारों ओर के लोगों से करते हैं। नथिंग इज डिस्ग्रेस इन मैन्स आइज, विशिंग ही वर फीचर्ड लाइक हिम and envious of this man's art and that man's scope. The speaker clearly measures his own self-worth in relation to others. Given that he is so frequently despondent, the poem thus implicitly suggests that comparison is an unwise endeavor. इस पोयम में बताया गया है कि कंपैरिजन जो है एक अनवाइज एंडेवर है दैट रिजल्ट्स प्राइमरीली इन सेल्फ पिटी, जो खुद पर दया का वो करती है। मतलब ये नहीं है कि देखे, एक जनरल सी भी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि आपसे कोई ज़्यादा अमीर है या उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं ऐशो आराम की जो आपके पास नहीं है, तो तब आप अपने से नीचे को देख लीजिए, जिससे जो लोग ऐसे हैं जिनको खाने के लिए खाना भी नहीं है, तो खुद को कंपेयर इस तरह से मत कीजिए। यही इसमें बताया गया है। दिस सेल्फ पिटी इन टर्न ओनली सर्व्स टू फर्दर सेपरेट टू स्पीकर फ्रॉम द रेस्ट ऑफ सोसाइटी। सोनेट 29 इज नॉट जस्ट अ पोएम अबाउट डिसअपॉइंटमेंट एंड डिस्पेयर। ये एक डिसअपॉइंटमेंट और डिस्पेयर की पोएम नहीं है। इट्स अ पोएम अबाउट द वे दैट लव कम्फर्ट्स, soothes and repairs the many injuries that one endures in life. बल्कि ये बताता है कि किस तरह से लव कंफर्ट्स रहता है। After the poem's bitter opening at lines, the speaker reflects on the love he shares with his beloved. फिर वो ये एक लव पोएम है 29 जो है, तो इसमें 8 लाइन की पोएम के बाद में स्पीकर जो है अपने लव को अपने बिलव्ड के सामने शेयर करता है और ये उसको रिफ्लेक्ट होता है, दिखता है। दैट लव ही आर्ग्यूज ऑफर्स कंपेंसेशन for all his insults, slights and misfortunes. In this way, the poem contrasts love with wealth and status. जो पोएम है वो कंट्रास्ट करती है लव और वेल्थ और स्टेटस का। लव स्टैंड्स आउटसाइड दोज परस्यूट्स एंड इट्स इंटेंस प्लीजर्स एंड रिवॉर्ड ऑफर्स एन ऑल्टरनेट पाथ टू हैप्पीनेस। देखिए जो पोएम है क्लोजिंग कपलेट है, इसमें स्पीकर डायरेक्टली एक यंग मैन के लव को एक वेल्थ से कंपेयर करता है। ए वेल्थ मतलब कि विच इज सो सेटिस्फाइंग दैट ही वुड नॉट गिव इट अप फॉर एनीथिंग। मतलब ऐसा वेल्थ जो जिस वेल्थ के लिए वो कुछ भी त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। ही वुड नॉट गिव इट अप फॉर एनीथिंग इवन टू बी किंग ऑफ किंग इंग्लैंड। The line echoes a complaint from early in the poem, wishing me like to one more rich in hope. तो इसमें जो लाइन्स है वो इमोशनल भी हैं और जो स्पीकर है is not weeping, he is crying out of heaven to accusing his fate. Indeed, he may even be melodramatic immediately. तो ये एक मेलोड्रामेटिक पोएम है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ पोएम को शेयर किया है। वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब